So, hello everybody. In this video and the upcoming videos that will come, we'll focus upon doing the PYQs of prelims of UPSC. Here, we'll be focusing upon the prelims of last 15 years, starting with 2026, and we'll go back till 15 years back. Next thing, in terms of goals of this particular activity, there are few specific goals. The first goal is to make sure that we have a comprehensive understanding of this entire PYQs, meaning that the basic research that is there. Second, in terms of first the basic research, what it is. Second would be the in-depth research which is required and the aptitude we need to build for this. Okay, so that would be the approach that we'll go for. In terms of how this video will go about, first would be I'll be solving 5 questions. Every day I'll be solving 5 questions. After solving these questions, I would be doing the research of this, that is in-depth analysis of these questions. जब इनका इन डेप्थ एनालिसिस हो जाएगा, then I will be focusing upon just the basic end learning of this particular topic that is there. So let's start with the first one. First is, the question is, which one of the following Carnatic music ragas is similar to raga Bilaval in Hindustani music? So here we are seeing that it is art and culture. It is a topic of art and culture. And as per my knowledge, or as per basic knowledge that is required, I do not know. So here the logic is not something that works. However, if we look at the question, we know that it talks about Carnatic music and it wants to know which is similar to Hindustani music. So even in terms of logic, we cannot come to anything. But as per the aptitude, which says that in an option that is there, if in the options, the one which is very unique and different, like Dhira Shankara Abrahaman, that is there. This particular option is something which is different, unique. So we will mark this. And if we look at the provisional answer key, this is the answer. Next, we have, so here this was solved through aptitude, which is formed after analyzing the PYQs of the last 15 years. Next we have next question is about modern history, which talks about the artificially fixed rupee sterling exchange rate prescribed by Hilton Young Commission 1926 was adopted by the British government for which of the following reason? It is asking the reasons why the Hilton Young Commission, it prescribed the artificially fixed rupee sterling exchange, that they had fixed it, meaning that it was done artificially. That is, in economics we know the concept of fixed exchange rate. That's what happened. Now why did they do it? What are the reasons? Let's see. Aiding the flow of remittances from India and maintaining India's creditworthiness. Okay. Next is providing support to Indian importers. Not actually. This would not be there. Here we know that as per knowledge also, because this is the same Hilton Young Commission that talks about creation of RBI, and also we know that we know it is related to that, but they are asking a different question in this. So here what we can use logic, saying that in terms of providing support to Indian importers, no, that is not there. They did not provide support to Indian importers. They wanted the import to be reduced, and a similar question was asked in PYQs, asking regarding about the it was asking about the industry or the commercialization of land, reform of the land that happened in British. So this could be eliminated. Next is encouraging export of cotton produced from India. India say export is something that they did not support. Preventing depreciation of rupee in terms of gold. What will they do about this? I don't think so it is needed. And preventing depreciation of rupees in terms of gold, they do not want. Here they are talking about rupee sterling exchange, here they are talking about with respect to gold. So this kind of contradicts what they are fixing. So
by that logic, by eliminating, we are able to get to the right answer, that is aiding the flow of remittances from India and maintaining India's creditworthiness. Meaning that they wanted to make sure that money is coming from India to Britain. And here we have drain theory by Dadabhai Naoroji, that is also there, that also supports this. Next we have next question. This is a new type of questions that was asked, where they had given two statements, statement 1 and statement 2. And with this statement, after reading these two statements, we had to make the assumption like how they are associated with these two particular conclusions. Let's see. Pali texts contain the first definite references to coins. Example, Kashapana, Niksha, Kamsa, and Kakanika. This is something that we have studied. Kakanika and Kamsha are the two words which would be new to us. We have studied about Niksha and Kahapana. Next one is literally evidence from Pali text is corroborated by archaeological evidences of punched mark coins from many sites, mostly made of silver. See, silver, if we have basic knowledge of silver, we know that silver is found in India but not abundantly, so there would be some kind of import and all. But here we are seeing that there is a literary text which is talking about these archaeological, about the punch marked coins that are there. So what does this say? Does they talk about urban life or transition to money economy? I think second part, this one is actually like it kind of shows coin money economy, that is based upon economy, based upon money itself. So this kind of associates directly. So this is correct. So neither option D and option 1 are not correct. Next, in terms of the first one, what we see emergence of urban life. Urban life का emergence की बात कर रहा है. तो like see, मनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है when we have that double counting is the main issue that we have in accounting, right? In accounting, in economy, that is the main issue. And if we have increasing population is increasing, and it would require more transaction that will happen. If there is increase in transaction, that will mean that there is urban life that is developing. Example, the Indus Valley civilization that took place. So by that logic, we can say that these two, statement 1 and 2, are associated with 1 and 2. So answer would be C. Okay, here we used our first, the knowledge we had. Second, it was more aptitude based. This was aptitude based, and this is a new pattern that UPSC has asked. And I think in this paper we'll see this a lot we'll see these kind of question a lot, where it has given the fact we have to come to the answer. Next we have is again art and culture question. With knowledge, I would say that temples of Nagara style Shikra, I think they have asked about this in previous years. Not a similar question, they have not asked about specific temples, but they have asked about the type, what are the features associated with that. Let's look at it. Viruprakasha temple, I know this temple is not in Nagara style, so we can eliminate this. With eliminating, we have three options. Then we have Badami, again Melgiti Shivalaya temple in Badami is also not a Nagara style temple, so we have come to two options. This was my knowledge that I used. Next part would be using my aptitude, because a whole is related to Jainism. This is what I know. I'm not sure. I know about this Diogar Dashwarta temple is Nagara style, so that is there. Here I use the option B strategy, option B aptitude strategy, that is there. So by that logic, I will mark B. Now the last question of today would be, here in this, if I have to summarize, I would say I use my logic first. Logic by logic, we were able to eliminate these two, and we were able to come to option B and C. In this we know that C तो सही है. इसके बाद सिर्फ B बचा. B के बचने पे हमें ये पता है A whole का मुझे नहीं पता, I'm not so sure, but कहीं ना कहीं बोल सकते हैं नगारा स्टाइल भी हो सकता है, because there are temples in the north which are related to Jainism, or
there are other temples too, so I'm not sure, so I use the B strategy, option B strategy, which I have developed over the years by analyzing this, the PYQ. So by that logic I came to this. Next would be, among the four main forms of existence of life recognized in Jainism. Jainism is again a favorite topic. Which one is not included here? हमें पता है कि जैनिज्म में सोल इज यूनिवर्सल. Soul is universal. This is a basic knowledge that everyone has. This is a basic knowledge. Soul is universal. It talks about that and humans में soul होता है, plants और animal में soul होता है, तो कौन सा included नहीं होगा? ये दोनों तो included हैं. Now gods and demigods. See, सबसे यूनिक अब क्या आता है कि हमें पता है गॉड में भी दे ऑल्सो बिलीव कि अगर सोल है, गॉड के बारे में भी दे हैव टॉक्ड अबाउट, सो वी कैन से दैट उसमें भी सोल होगा. सोल इज समथिंग यूनिवर्सल बोला है सारी चीज़ों में. लेकिन यक्षगना, डेमी गॉड्स इज समथिंग दैट जैनिज्म डज नॉट मेंशन. इट इज मेंशन इन गुप्ता पीरियड. गुप्ता पीरियड में डेमी गॉड्स की बात करता है, यक्षगनाज एंड ऑल यश. तो बाय दैट लॉजिक वी, सो यहाँ पे क्या करा हम लोगों ने? पहले अपना नॉलेज यूज़ किया. फर्स्ट वी यूज द नॉलेज टू सॉल्व इट. Second thing which we did was, after using the knowledge we were able to eliminate two options. Then दो बचे इसमें गॉड के बारे में, और हमने सोचा यक्षगना, उसमें हमने यूनिकनेस देखा. एक तो इतना यूनिक वर्ड है डेमी गॉड्स विच आर नॉट एसोसिएटेड विद जैनिज्म. हमने इतना जैनिज्म पढ़ा है कि डेमी गॉड के बारे में इतना सुना नहीं है, तो वी कैन से ऑप्शन दैट वुड बी द आंसर. So the next part of this would be analyzing. Like first we'll do research of these. हम इसके बारे में जानेंगे. फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम जानेंगे. तो फर्स्ट वाला जो है, पहले हम बात करेंगे कि ये जो नट भैरवी इज अ कर्नाटिक म्यूजिक इटसेल्फ. ये रागा बिलवाल के साथ रिलेटेड नहीं है, और ये कर्नाटिक म्यूजिक में का रागा ही है. तो इसकी वजह से हमारा नॉलेज क्या है, इससे हमें क्या पता चला? नट भैरवी इज एक्चुअली अ कर्नाटिक म्यूजिक रागा, नॉट अ हिंदुस्तानी म्यूजिक रागा. एंड नेक्स्ट इज ऑल्सो ओके. और ये वाला जो है कामावर्धिनी, इट्स ऑल्सो कर्नाटिक म्यूजिक रागा विच इज इक्वलेंट टू, this is equivalent to, it's a Carnatic. and ये कौन से रागा से रिलेटेड है? ये एक्चुअली में नट भारवी हिंदुस्तानी रागा से ही रिलेटेड है. जो उसका दूसरा हिंदुस्तानी भारवी जो है वो उससे रिलेटेड है. जो कामावर्धी जो है वो कौन से रागा से रिलेटेड है? ये कामावर्धी रागा जो है वो हमारा पूर्वी रागा से रिलेटेड है. पूर्वी या पूर्वी रागा से रिलेटेड है. नेक्स्ट वाला पार्ट जो आता है वो हमारा हुना माटोडी. हुना माटोडी जो है ये एक कर्नाटक म्यूजिक है. इसका जो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी में ये हिंदुस्तानी म्यूजिक में ये रिलेटेड है टोडी. ये टोडी से रिलेटेड है, या ये हिंदुस्तानी भारवी से रिलेटेड है. जो मतलब कि ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन अगर यहाँ पे पूछा जाता हिंदुस्तानी भारवी, तो हम लोग इन दोनों में से एक को सिलेक्ट कर सकते थे. बट एक्चुअली में यहाँ पे रागा बिलवाला पूछा गया है. तो ये जो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन है दैट इज द वन विच इज करेक्ट. ये इसके बारे में अगर हम देखा जाए, ये मेजरली ये वेस्टर्न मेजर स्केल इक्विवेलेंट होता है. तो हमें बेसिक नॉलेज, इससे हमारा रिसर्च क्या बोलता है, व्हाट डज रिसर्च टॉक अबाउट हियर, हमें ये पता चला है कर्नाटिक म्यूजिक का सिमिलर पूछा गया है हिंदुस्तानी म्यूजिक में, जिसमें हमारे पास अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं. नट भारवी जो है वो हिंदुस्तानी म्यूजिक में हिंदुस्तानी भारवी से रिलेटेड है. कामावर्धनी जो है वो हमारा पूर्वी हिंदुस्तानी पूर्वी रागा से रिलेटेड है. एंड हुना माटोडी जो है वो टोडी या हिंदुस्तानी भारवी से रिलेटेड है. सो बेसिकली व्हाट दे वांट टू नो कि स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स, सॉरी इसमें आर्ट एंड कल्चर में स्पेसिफिकली जाके वो जानना चाहते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटक म्यूजिक में कैसे रिलेटेड. ये इन डेप्थ है, पहले ये चीज़ नहीं पूछी गई. दे वुड आस्क अबाउट कि इसमें कर्नाटक और इसमें क्या है, बट रागा के बारे में ज़्यादा पूछा नहीं गया. नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड वाला, दैट इज ये आता है हमारा हिल्टन यंग कमीशन के बारे में 1926 के बारे में. ये वाला पार्ट जो है हम मॉडर्न हिस्ट्री में स्टैटिक पोर्शन में पढ़ते हैं. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द स्टैटिक पोर्शन दैट वी स्टडी. इन दिस हमें ये स्पेसिफिकली पता है कि देखो ये जो एडिंग रेमिटेंसेज और क्रेडिटवर्थिनेस इसीलिए भी बिकॉज ये यहाँ पे हमें इतना भी पता है कि दे हैड फिक्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो होम चार्जेस बोला जाता था जो इंडिया से ब्रिटेन जाता था. सो अगर ये रूपी
अगर डिप्रिशिएट होगा तो रुपी का वैल्यू कम होगा, तो वो स्टर्लिंग के मतलब उनके लिए वैल्यू कम होगा, तो जितना वो कन्वर्ट करेंगे स्टर्लिंग में, तो दे वांटेड टू फिक्स द रेट सो दैट कि वो क्या बोलते हैं स्मूथ फ्लो और एक कांस्टेंट फ्लो जाता रहे। नेक्स्ट एक ये भी है कि लंदन का कॉन्फिडेंस मेंटेन लंदन्स कॉन्फिडेंस इन इंडियाज एक्सटर्नल पेमेंट कैपेसिटी में। नेक्स्ट हमारा आता है, देखो सपोर्ट टू इंडियन इम्पोर्टर्स इज समथिंग दैट इज़ नॉट देयर, बी इट हमारे जो इंडियन ट्रेडर्स हुआ करते थे, टेक्सटाइल ट्रेडर्स, टेक्सटाइल वाले हो गए या फिर हमारे अदर्स कोई भी हो गए, उनको सप्रेस किया गया था इंस्टेड ऑफ एक्चुअली सपोर्टिंग देम। सो दे हैड ओवर वैल्यूड रुपी एंड जिसकी वजह से इम्पोर्ट्स चीप हो जाएंगे एंड उसके बाद ये कमीशन जो है वो इसका कोई पर्पस, जैसे मतलब इट्स लाइक एन इफेक्ट दैट इज हैपनिंग दैट नॉट प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इंडियन इम्पोर्टर्स, वो सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता था। देन एक्सपोर्ट की बात करी जाए, देखो एक्सपोर्ट के बारे में तो नहीं, इट्स एक्चुअली ऑपोजिट, ये कॉस्ट को इंक्रीज करता था बिकॉज इंडियन रुपी ओवर वैल्यू हो गया, जितना उसका एक्चुअल वैल्यू उससे ज़्यादा, बिकॉज स्टर्लिंग का प्रोग्रेस हो रहा है, इंडिया का नहीं हो रहा है, इंडिया का ग्रोथ डाउन हो रहा है, तो ये ओवर वैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी हो रहा है जिसकी वजह से एक्सपोर्ट को डिक्रीज करता था वो। नेक्स्ट आता है हमारा पेगिंग इट टू रेट वर पेग टू स्टर्लिंग, यहाँ पे इन्होंने कंफ्यूज कर दिया, अगर यहाँ पे स्टर्लिंग आता तो वो सही हो जाता। दिस इज अ मेन पॉइंट दैट वी नीड टू नो, ये हमें मेन पॉइंट जानना ज़रूरी है इसमें कि यहाँ पे अगर गोल्ड की जगह यहाँ पे वो स्टर्लिंग लेके आ जाते तो उसके बाद क्या होता, इन टर्म्स ऑफ स्टर्लिंग होता तो ये ऑप्शन सही होता, बट इन्होंने क्या किया, गोल्ड लिख दिया। पेगिंग टू गोल्ड करके क्या करना है, उन्हें क्या करना था, उन्हें तो एक्चुअली में दे वांटेड टू मॉडिफाई एंड दे वांटेड टू यूज इट फॉर देयर एडवांटेज, तो ये हमने हर एक ऑप्शन को वो कर लिया। नेक्स्ट आता है थर्ड वाला, जो मैंने बताया नया पैटर्न है, बट इससे हम नॉलेज क्या ले सकते हैं, व्हाट कुड बी वन फ्यू थिंग्स विच वी कैन स्टडी। देखो हमें ये पता है, हमें कॉइन्स के बारे में पता है, हमें इस नॉलेज भी दे रखी है इसके बारे में, लाइक हमें पंच मार्क कॉइन्स के बारे में पता है, बहुत सारी जगह पे पाए गए हैं दीज पंच मार्क कॉइन्स जो होते हैं हमारे पंच मार्क्स कॉइन, ये बहुत सारी जगह पाए गए हैं। एंड व्हाट वी आर सीइंग कि हमारे न्यूमरस साइट जैसे तक्षशिला हो गया, कुसाम्बी हो गया, यहाँ पे भी पाए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमें ये पता है 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड हमें मिल जाता है, बट हम आगे क्या करते हैं, दैट्स व्हाट लाइक ये जो है ये प्योरली एप्टीट्यूड बेस्ड है। हमें नॉलेज तो ऑफकोर्स होनी चाहिए कि ये दोनों सेंटेंस इवन दो ये नॉलेज प्रोवाइड करता है और कहीं नहीं, बट ये हमें जानने की कोशिश, बिकॉज नेक्स्ट टाइम दे कुड आस्क अबाउट कॉइन स्पेसिफिकली, तो हम लोगों को यहाँ पे किसके बारे में फोकस करना है, वी हैव टू फोकस अपॉन वाइल रीडिंग दी स्टैटिक पोर्शन ऑफ हिस्ट्री स्पेशली दी महाजनपदा टाइम्स, तो हमें उधर कॉइन्स के बारे में एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू दी डेवलपमेंट ऑफ इमर्जेंस ऑफ लाइफ, तो एक कनेक्शन बनाना है हमें, एक कनेक्शन बनाना है। नेक्स्ट वुड बी हमारा नगरा स्टाइल और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दीज आर द न्यू वर्ड्स दैट हैव बीन एडेड टू दिस, तो हम नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, मेलगित्ती शिवालय बादामी टेम्पल। ये जो मेलगित्ती है चालुक्य टेम्पल है, चालुक्य का टेम्पल था ये हमारा चालुक्यन टेम्पल है एंड ये जो टेम्पल है 7th सेंचुरी में था, ये द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ है, नगरा में नहीं है। इसका पिरामिडिकल विमाना है। नेक्स्ट हमारा आता है हुच्चीमली गुड्डी टेम्पल, ये जो है ये भी एक चालुक्यन श्राइन है, ये वाला भी एक चालुक्यन श्राइन है, लेकिन ये वाला जो चालुक्यन स्टाइल श्राइन है ये नगरा स्टाइल में बना है और ये पहले बना था। देन अपना दश अवरता टेम्पल दियोघर में, ये एक्चुअली पहले पूछा जा चुका है, ये गुप्ता एज में बना था, 5th सेंचुरी में गुप्ता एज में बना था, ये उत्तर प्रदेश में था और ये एक्चुअली में अर्ली नगरा स्टाइल जो होता है उसको पूरी तरह से, तो दशरथा के बारे में आई वॉज नॉट इवन डाउटफुल एंड इवन एज पर माई नॉलेज इसके बारे में मैं इतना डाउटफुल नहीं थी, बट वीरू प्रकाशा के बारे में, बिकॉज वीरू प्रकाशा भी पहले पूछा हुआ है चालुक्यन। हमें एक चीज नोटिस हो रही है, दे आर आस्किंग अबाउट चालुक्यन temples,
So they can ask this in next paper about Chalukyan temples. तो हम जब चालुक्य पढ़ेंगे, चालुक्य इज अ न्यू थीम दैट इज कमिंग, तो चालुक्य पढ़ेंगे तो उसका आर्ट एंड कल्चर अच्छे से पढ़ना होगा. नेक्स्ट थिंग वुड बी अबाउट जैनिज्म. जैनिज्म पिछले साल नहीं पूछा गया था, जैनिज्म और बुद्धिज्म, लेकिन इस साल पूछा गया है. यहाँ पे हमारे पास बेसिक नॉलेज तो है हमारे पास इसके बारे में कि क्या बोलते हैं, रीबर्थ स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस की बात करता है. लेकिन ये जो आ जाता है ना कि ये 4 गतिज लाइक 4 चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मनुष्य के बारे में, अपना एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, बट इट डज नॉट टॉक अबाउट दिस डेमी गॉड्स, दैट इज डेमी गॉड्स के बारे में ये बात नहीं करता, इनके बारे में ये बात नहीं करता. बाय दैट लॉजिक वी वर एबल टू गेट. बट इसके अलावा हम एक और चीज़ जाने, 4th जो चीज़ है, ये डेमी गॉड्स नहीं आते यहाँ पे. ये जो चौथी चीज़ जो है यहाँ पे, जैसे एक ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, जो चौथी चीज़ जो आती है वो यहाँ पे बात करते हैं नाराकी की, जिसको हेल बीइंग बोलते हैं. मतलब कि जो नर्क में रहने वाले, ना कि डेमी गॉड्स की नहीं, लेकिन ये यक्षगना जो है वो एक्चुअली इसका पार्ट नहीं होगा. सो हम लोगों ने हर एक ऑप्शन, हर एक क्वेश्चन को समझा, सॉल्व किया उसको, एंड आफ्टर सॉल्विंग इट वी ऑल्सो वेंट इन टू द डेप्थ ऑफ इट. तो इससे हम इसका अगर समरी करना चाहें तो व्हाट विल से, हम इसके बारे में क्या बोलेंगे कि देयर आर फ्यू थिंग्स विच वी हैव लर्न टुडे इन दिस स्मॉल वीडियो. द फर्स्ट वन इज कि एक नया पैटर्न देखा हमने, न्यू पैटर्न हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा है, दैट इज दिस वन. ये एक नया पैटर्न था जो पहले नहीं देखा गया. दूसरी चीज हमने ये देखा है न्यू एरियाज. सेम एरियाज पूछे गए हैं, सेम एरियाज लेकिन विथ ग्रेटर डेप्थ. ग्रेटर डेप्थ हमने क्वेश्चन 1 में भी देखा है, क्वेश्चन 2 में भी और क्वेश्चन 4 में भी. हिल्टन कमीशन इज समथिंग जो पूछा, जो हम पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर में, कर्नाटक और हिंदुस्तानी म्यूजिक में हम थोड़ा पढ़ते हैं. और 4th वाला भी क्वेश्चन जिसमें हम पढ़ते हैं बट एक नया डेप्थ इसमें पूछा गया है. देन हम लॉजिक अप्लाई कर पाए. विद द हेल्प ऑफ लॉजिक वी वर एबल टू गेट टू द आंसर, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में और 3 में. नेक्स्ट एप्टीट्यूड अप्लाई करने की बात करें. अब हमारा 4th आता है, जब हमने एप्टीट्यूड मतलब जो हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स होती हैं उसको हम अप्लाई कर पाए क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 4 पे और क्वेश्चन नंबर 5 में. देखा, यूनिक नेम ये हमने सुने भी हैं. यहाँ पे भी हमने 4 वाले में भी अप्लाई कर पाए कि ये दोनों, इसमें ऑप्शन बी स्ट्रैटेजी और इसमें यूनिक वर्ड वाला. नेक्स्ट अब आता है ओवरऑल. हम लास्ट बात क्या बोल सकते हैं, हम लास्ट बात ये बोल सकते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो दूसरी तरीके से बढ़ा है. डिफ़िकल्टी लेवल ये इंक्रीज हुआ है, बट द डिमांड हैज़ चेंज. जो डिमांड है वो चेंज हुई है, जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज हुआ है. एंड वी नीड टू focus on building knowledge, second logic, and third aptitude. ये नहीं है कि इफ़ यू हैव स्टडीड दिस इन दिस बुक, इफ़ अगर हम नॉलेज सिर्फ कर लें तो कुछ नहीं होगा. लॉजिक भी और एप्टीट्यूड भी, हमें तीनों चीज़ें चाहिए. एंड दैट इज़ द पर्पस ऑफ दिस entire series that I'll be running, where I'll focus upon the knowledge, logic and aptitude. That's all. Thank you.